Hello everyone. Today we are going to discuss class 10 chapter 6 triangle, and the topic is criteria for similarity of triangle. Okay, it means on which criteria the triangle can be proved similar. Recall that in congruent triangle, in class 9 I have told you different type of criteria. That criteria was SSS. It means all the three sides of a triangle is equal to all the three sides of other triangle, then two triangles are congruent to each other. Second one is ASA, two angles and the side between them of one triangle is equal to two angle and side between them of other triangle, then two triangles are congruent to each other. Third one is SAS, two sides and angle between them of one triangle is equal to two sides and angle between them of the other triangle are equal, then the two triangles are congruent to each other. Okay, and the last one is RHS. RHS criteria was always used in right triangle. Two right triangle having one hypotenuse equal and one side equal, then the two triangles are congruent to each other. Similarly, there are some criteria to prove the similarity of triangle. Okay, let us recall. In last videos I have told you, if two triangles are similar, then they are equiangular. Angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and C is equal to F. If triangle ABC is similar to triangle DEF and the ratio of their sides are equal, like AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Okay, so in criteria of similarity of triangle there are total three criteria. Number one, criteria name is AAA. It means if all the three angles of one triangle is equal to all the three angles of other triangle, then two triangles are similar to each other. Okay, it means on the basis of AAA criteria, if you can see, अगर आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल की तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल की तीनों एंगल के बराबर है, तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, और जब सिमिलर हो जाएंगी तो उनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया ए क्राइटेरिया. अब देखो, ए क्राइटेरिया इज ऑल्सो नोन एज ए क्राइटेरिया. इट मीन्स अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हों, जाहिर सी बात है जब दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो केवल दो एंगल अगर आपको इक्वल दिखते हों तो आप उसे ए क्राइटेरिया से सिमिलर कह सकते हैं. ठीक है, दूसरा है एस क्राइटेरिया. एस क्राइटेरिया मीन्स इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड all the three sides of other triangle, they are totally proportional to each other. मतलब ये कंडीशन हो AB बाई डी इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, सिमिलर है, और जब सिमिलर हो जाएगा तो इसके तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. थर्ड क्राइटेरिया है SAS. अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड जो है दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के प्रोपोर्शनल हो, मतलब इनका रेशियो इक्वल हो, किसी भी दो साइड का रेशियो इक्वल हो, जैसे मान लो AB अपॉन डी और BC अपॉन EF, केवल ये दो प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एक एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो, तो इस आधार पे SAS क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करते हैं, AAA और A criteria. See here, if in two triangle, theorem 6.3,
इफ इन टू ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल दिया गया है, दोनों ट्रायंगल की अगर एंगल इक्वल है, ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, तो इन ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूव करते हैं देखिए। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल ABC and DEF such that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and C is equal to F। A D B C E और C और F। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। क्या कॉन्स्ट्रक्शन है, कट DP इक्वल टू AB, AB के बराबर DP आप कट करेंगे यहाँ, एंड DQ इक्वल टू AC, DQ के बराबर AC, AC के बराबर DQ कट करेंगे, ज्वाइन PQ, PQ को आपने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब ये ट्रायंगल ABC और DPQ ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट इसलिए होगा क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है और ये एंगल ऑलरेडी दिया गया है A इज इक्वल टू D। तो क्या हो जाएगा, जब A इक्वल टू D तो SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लिख देंगे क्या, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल इसके बराबर और ठीक है B P के बराबर, और ये जो लाइन है B जब P के बराबर हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और P जो है एंगल ये E के बराबर हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है और DEF एक ट्रायंगल है जो इक्विएंगुलर है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब A D के बराबर है, B E के बराबर है। तो जब B E के बराबर है और B यहाँ हमने कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूव किया B P के बराबर हो गया, तो P और E आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गए। और जब P और E आपस में इक्वल हो गया तो ये दोनों जो है क्या होते हैं, ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। और करेस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, देयरफॉर PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF हो गया। और जैसे ही PQ पैरेलल EF हो गया तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, DP अपॉन P इज इक्वल टू DQ अपॉन QF हो जाएगा। DP अपॉन P इक्वल टू DQ अपॉन QF हो गया। अब DP किसके बराबर है, DP AB के बराबर है। ठीक है, अब DP अपॉन P और DQ अपॉन QF जब हमने दिखा दिया तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये ऊपर की साइड DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF हो गया। ठीक है, अब ये DP और DQ जो आया हमारा, तो DP किसके बराबर है, हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया था AB के बराबर है, और DQ किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन D। सेम प्रोसेस से हम प्रूव कर सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम करना पड़ेगा। फिर इसके बराबर यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF हो गया और AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF हो गया, तो ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो तीन एंगल इक्वल है ही और तीन साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, आपस में सिमिलर हो गई। ठीक है, ये देखो, ये तीन साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसमें रिमार्क में देखिए क्या लिखा गया है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल देयर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, देयरफॉर ट्रिपल ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। क्या है, if two angle of one triangle are respectively equal to two angle of another triangle then the two triangles are similar। कहने का मतलब है
कि अगर केवल दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो हम उसे सिमिलर कह सकते हैं, और इस क्राइटेरिया आप कहेंगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। ओके, ये हो गया ए क्राइटेरिया। अब चलिए दूसरी क्राइटेरिया हम देखते हैं, थ्योरम 6.4। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and hence the two triangles are similar. This criteria is known as SSS criteria. ठीक है, SSS similarity criteria. तो if it is given that sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, मतलब दो ट्रायंगल है अगर ABC और DEF तो इनकी साइड्स का रेशियो AB बाई DE, BC बाई EF और CA अपॉन FD ये जो है इक्वल हो जाएगा। इसमें ऊपर वाली ट्रायंगल छोटी होगी, नीचे वाली ट्रायंगल बड़ी होगी, दैट्स वाई इनका रेशियो जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, अब आइए देखते हैं। दीज आर टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ओके, नाउ कट DP इक्वल टू AB, DP इज इक्वल टू AB and DQ इक्वल टू AC, DQ इक्वल टू AC, ज्वाइन PQ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब हमने किया DP इक्वल टू AB, अब रेशियो क्या दिया हुआ है AB बाई D और BC इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू CA बाई FD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की साइड्स जो है क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो AB के बराबर हमने क्या काटा DP काटा, तो DP बाई P। अब ये AB बाई D है, AB बाई D। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे AB की जगह DP, तो DP बाई D हो जाएगा। अब जब DP बाई D हो गया तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि थेल्स थ्योरम में +1 करने पे ये पूरी साइड जो है ऊपर की साइड अपॉन होल साइड आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह -1 जब कर देंगे तो ये आ जाएगा DP बाई P, तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो DP बाई P। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा DQ बाई QF। तो जब DP बाई P और DQ बाई QF हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू EF, और जब PQ और EF पैरेलल हो गया तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो गया। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो गया। जब P और E और Q और F बराबर हो गया तो ये देखिए ये एक एंगल ये दूसरा एंगल, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल ये बराबर हो गया, और ये एंगल बराबर हो गया, तो ये DPQ और DEF ये क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर हो गए तो DP अपॉन D, ठीक है, DP अपॉन D, उसके बाद से DQ अपॉन DF और PQ अपॉन EF हो जाएगा। तीनों साइड्स का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल DPQ और DEF ये दोनों सिमिलर हो गए AA क्राइटेरिया से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जब DP बाई D, DQ बाई DF और PQ बाई EF हो गया, ठीक है, तो DP बाई D इज इक्वल टू DQ बाई DF इज इक्वल टू PQ की जगह हम BC लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ BC बाई EF है। AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई FD इज इक्वल टू BC बाई EF है, तो AB की जगह क्या है DP है, तो AB की जगह DP है तो DP बाई D हो गया। AC के बराबर हमने DQ काटा है तो DQ बाई DF हो गया, CA FD मैंने लिखा है, तो ये AC जो है DQ के बराबर है तो DQ बाई FD हो गया। ठीक है, और एक दिया गया है साइड BC बाई EF, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों PQ बाई EF और BC बाई EF के इक्वल है, तो इन दो से क्या हो जाएगा EF कैंसिल हो जाएगा और BC इज इक्वल टू PQ हो गया। जैसे ही BC इज इक्वल टू PQ होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DPQ। ABC और DPQ आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, और P के बराबर E है तो B इज इक्वल टू E, C इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q है और Q के बराबर F है तो C इज इक्वल टू F हो गया। इस तरह इसके तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए और रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया गया है, तो ये दोनों ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
अब थ्योरम 6.5 देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब किसी ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की एक एंगल के बराबर है और उनकी जो दो साइड्स है वो दोनों साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो कहने का मतलब है कि दो साइड्स का रेशियो और उसके बीच का एक एंगल इक्वल दिया गया है, दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया गया है और एक एंगल इक्वल दिया गया है। जो बची हुई एक साइड है वो आपको प्रोपोर्शनल दिखानी है और जो बचे हुए दो एंगल हैं उसे आपको प्रोपोर्शनल दिखाना है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, इसमें मान लेते हैं कि AB अपॉन डी इज इक्वल टू AC अपॉन DF दिया गया है। ठीक है, ये F है, F। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा, आप इसमें भी कंस्ट्रक्शन करोगे, AB के बराबर DP काटोगे, AC के बराबर DQ काटोगे। A और D ऑलरेडी इक्वल है, AB इज इक्वल टू DP हो गया, AC इज इक्वल टू DQ हो गया बाई कंस्ट्रक्शन। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल DPQ और ABC ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब एक और चीज़ देख लीजिए। फिर जब ये साइड आप दिखाएंगे, AB अपॉन डी दिया हुआ है, AB की जगह DP आपने लिखा तो DP अपॉन डी हो गया। तो जब DP अपॉन डी हो गया तो ये DP अपॉन P भी हो सकता है। इसी तरह AC के बराबर आपने PQ काटा और AC इज इक्वल टू DF दिया हुआ है, तो ये DQ अपॉन QF हो सकता है। ठीक है, तो इफ द रेशियो इज इक्वल देन अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF हो गया। अब जब PQ पैरेलल EF हो गया और ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो आप देख सकते हैं A इक्वल टू D ऑलरेडी दिया गया है, B इक्वल टू P हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो P के बराबर E हो गया, तो B के इक्वल E हो जाएगा। ठीक इसी तरह C के बराबर Q हो जाएगा और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो Q के बराबर F हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल A इक्वल टू D गिवन है, B इक्वल टू E हो गया और C इक्वल टू F हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। 3 क्राइटेरिया हमने बता दी, AA क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया और SAS क्राइटेरिया। अब देखिए, जैसे इन फिगर 6.29 इफ PQ पैरेलल RS प्रूव दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू SOR। ये POQ है, ये SOR है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ध्यान दीजिए, पैरेलल है तो क्या हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 3 एंगल इक्वल हो गए। इसके 3 एंगल के आपको दो ही कोई एंगल दिखा देना है और दोनों एंगल दिखा के आप ये लिख देंगे POQ इज सिमिलर टू SOR। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। अब एंगल P आपको फाइंड करना है, तो पहले ये C की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस इज 80, दिस इज 60, तो C कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए 3.8, ठीक है, और ये साइड है 7.6, 3.8 देखिए यहाँ 3.8 अपॉन 7.6, इसका रेशियो कितना होगा, 1/2। ठीक है, ये कौन सी साइड हो गई, AB अपॉन QR। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी साइड निकलेगी, ये देखिए BC किसके साथ, PQ के साथ, BC अपॉन PQ, ये भी हो जाएगा 6/12, तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये भी हो जाएगा BC अपॉन PQ। और AC अपॉन किसके है, RP के, AC अपॉन RP, AC अपॉन RP, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन RP 3√3 और 6√3, ये भी 1/2 हो गया। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल तो हो गया ABC, ये ट्रायंगल नीचे का जो ट्रायंगल होगा, जो दूसरा ट्रायंगल होगा, इसका नाम हम रखेंगे QRP, QRP। ठीक है, तो ABC जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो, सिमिलर हो गया किसके, RQP के। ठीक है ना, RQP के सिमिलर हो गया। ध्यान दीजिए, AB और QR है और यहाँ जो है QP है।
ठीक है, इसको पी क्यू की जगह हम क्यू पी लिख दें अगर, और ये क्यू आर की जगह आर क्यू लिख दें, तो ये हो गया हमारा आर क्यू पी। ए बी सी इज सिमिलर टू आर क्यू पी। तो जब ए बी सी और आर क्यू पी सिमिलर हो गया तो क्या होगा, एंगल सी जो है एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए आर के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, और सी जो है किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। तो ये देखिए सी की वैल्यू कितनी निकली है, 40 डिग्री, तो ये क्यू के बराबर हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल का नाम लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसका कौन सा एंगल बराबर है। अगर साइड्स दी गई है तो किस किस साइड का रेशियो इक्वल है, उस पर डिपेंड करता है किसका नाम कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 6, इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD दिया गया है। ठीक है, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब क्या करना है, जब OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD दिया गया है तो इसको OA अपॉन OC लिख सकते हैं। OC यहाँ आ सकता है क्योंकि ये इक्वल टू की साइन है, और OD के नीचे OB आ सकता है। तो OA देखिए और OC, OA एक ट्रेंगल की साइड है, OC दूसरे ट्रेंगल की साइड है। ठीक इसी तरह OD दूसरे ट्रेंगल की साइड है और OB दूसरे ट्रेंगल की साइड है। ठीक है ना, तो दो साइड हो गया प्रोपोर्शनल, और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा। तो SAS क्राइटेरिया से ये AOD और COB ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे, और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल, क्योंकि AOD और COB लिख रहा है तो A इज इक्वल टू C और D इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक लड़की है, A girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. ये देखो, this is the lamp post, ये लड़की यहाँ से यहाँ तक जा रही है 4 सेकंड में। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि यहाँ से इस लड़की की जो ये शैडो बन रही है, इस शैडो की लेंथ कितनी होगी। इस शैडो की लेंथ हम मान लेते हैं x। ठीक है, और इस लड़की की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड चली है, तो 4 सेकंड 1.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर। ठीक है, लैम्प पोस्ट कितना ऊंचा है, 3.6 मीटर। लड़की की हाइट कितनी है, लड़की की हाइट है आपकी 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर। ओके, अब देखो, अब यहाँ दो ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है ECD और एक ट्रेंगल बन रहा है ABE। एक ये बड़ा ट्रेंगल और एक ये छोटा ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे, एंगल E जो है दोनों में कॉमन है, इस ट्रेंगल में भी है, CDE में भी है और ABE में भी है। दूसरा, जब कोई भी चीज़ वर्टिकल होता है सरफेस पे तो इसमें 90 डिग्री की एंगल बनती है, तो ये भी 90 डिग्री की एंगल, ये भी 90 डिग्री की एंगल। तो ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जैसे ही क्राइटेरिया सिमिलर हुआ, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस टोटल साइड B अपॉन D। तो B की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4.8 प्लस x, और D x हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ यहाँ किया गया है, पहले सिमिलर प्रूफ करने के बाद AB अपॉन D इज इक्वल टू AB अपॉन CD। B हमने बताया B अपॉन D इज इक्वल टू AB अपॉन CD। B हमने बताया 4.8 प्लस x, D जो है x है, और ये हो जाएगा AB 3.6 और ये 0.9। फिर इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 1.6 आ गया। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल नंबर 8, इन फिगर 6.33 CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR। ABC और PQR का मीडियन है, CM एक का मीडियन है और एक का RN मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज ए लाइन विच डिवाइड द ट्रेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब इन दोनों पार्ट को भी ये इक्वल प्रूफ कर रहा है। ये मीडियन जो है AM और BM इक्वल है, इसी तरह ये QN और PN इक्वल है। ध्यान दीजिए, इफ ट्रेंगल ABC सिमिलर टू PQR। अब ABC और PQR जब इक्वल हैं तो क्या होगा, ABC और PQR जब इक्वल हैं, सॉरी ABC और PQR सिमिलर हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ, इफ ABC ट्रेंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQR, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। साइड्स का रेशियो कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन
PR हो जाएगा। अब देखिए फिर देखते हैं क्या प्रूफ करना है आपको, AMC और PNR, AMC और PNR, तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है AB अपॉन PQ, ठीक है। तो AB अपॉन PQ इसकी साइड हो गई, AB अपॉन PQ, ये साइड सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। एक है AC अपॉन PR, AC अपॉन PR भी है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, ABC और PQR। तो एक ये साइड का रेशियो AB अपॉन PQ और एक जो है AC अपॉन PR, ये रेशियो हमारे पास इक्वल है। अब जब AB अपॉन PQ है तो इसे हम हाफ भी कर सकते हैं। अगर फुल साइड का रेशियो इक्वल है तो हाफ साइड का भी रेशियो इक्वल होगा। तो हाफ साइड क्या हो जाएगा, AM अपॉन PN, ठीक है, AM अपॉन PN। इसे हाफ भी कर सकते हो, हाफ AB अपॉन हाफ PQ कर सकते हो, या 2AM अपॉन 2PN कर सकते हो, ठीक है। जहाँ AB बाई PQ है वहाँ आप लिख सकते हैं 2AM अपॉन 2PN। और ये CA अपॉन RP, ये देखिए ये CA है और ये RP है, ये साइड RP है आपकी, ये इक्वल है। तो जब ये फुल साइड इक्वल है तो हाफ भी इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन RP, दो साइड इक्वल आ गई दोनों ट्रायंगल की, और एक एंगल ये ऑलरेडी इक्वल है, A इज इक्वल टू P। तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB बाई PQ, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB बाई PQ, ठीक है। क्योंकि AB बाई PQ के बराबर जो है क्या है, AC बाई PR भी है, ठीक है। और AC बाई PR जब इक्वल हो गया तो AC बाई PR के इक्वल है CM बाई RN। तो जब CM बाई RN AC अपॉन PR के इक्वल है तो ये AB अपॉन PQ के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगला है ट्रायंगल CMB सिमिलर टू RNQ, CMB ये ट्रायंगल और RNQ ये ट्रायंगल, इसको भी हमें सिमिलर प्रूफ करना है इसी मेथड से, जिस मेथड से हमने ये राइट साइड के ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट है क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इन ट्रायंगल्स को आपको चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है। जैसे ये देखो 60-60 के एंगल है, ये 80-80 का एंगल है, 40-40 का एंगल है, तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ए P के बराबर है, B C के Q के बराबर है और C R के बराबर है। तो ABC सिमिलर टू PQR, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह इन सारे ट्रायंगल को चेक करना है। जैसे सेकंड नंबर है, देखिए AB अपॉन QR, AB और QR का रेशियो इक्वल है 2/4। इसी तरह BC और RP का रेशियो इक्वल है 2.5 अपॉन 5, 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह AC और PQ का रेशियो इक्वल है 3/6, 1/2 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ABC, और AB के बराबर कौन सी साइड थी, QR, तो QRP होगा। ये PQR नहीं होगा, ध्यान दीजिए, QRP होगा, ठीक है। तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो गई, SSS क्राइटेरिया हो गई। इसी तरह आपको ये चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद इसके बाद से इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, टोटल ये 16 क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर इन फिगर 6.35 ODC इज सिमिलर टू OBA। ये ODC और ये OBA सिमिलर है। आपको बताना है CDO दिया हुआ है 70 डिग्री का, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको बताना है DOC और DCO, DOC ये एंगल और DCO। तो आप देखो क्या करोगे, और OAB भी बताना, ये भी बताना है। इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ODC और OBA, ODC और OBA मतलब D के बराबर B होगा, C के बराबर ये होगा। तो पहले 180 में से 125 माइनस कर दोगे, ये एंगल निकल जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। और 70 और 55 को प्लस करोगे 125 होगा, तो ये भी एंगल निकल जाएगा 55 डिग्री। अब C के बराबर ये होगा और D के बराबर B होगा,
ठीक है। तो ओ ए बी आपका कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है। थर्ड नंबर है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रापेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ई डी। तो क्या करना है, एक जो है आपको ट्रापेजियम बनाना है, ऐसे ट्रापेजियम बना देना है ए बी, और ये जो है डी सी हो गया, इसके दो डायगोनल हो जाएंगे जो ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। आपको बताना ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे, तभी तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो ये ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, और सिमिलर हो गई तो इसके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस एक्सरसाइज टोटल 16 क्वेश्चन आर देयर अप टू क्वेश्चन नंबर 10. All will be proved by a criteria. Okay, I will send the PDF. By this PDF you have to solve up to question number 16. Okay, total question I am not going to explain. You will solve all questions 16, and if any problem you can call me. Okay, so today what you have to solve, you have to solve three criteria. You have to prove three criteria of similarity of triangle. A criteria, that is known as also double A criteria, SSS criteria and SAS criteria. After it you have to solve example number 4, example number 5, example number 6, example number 7 and example number 8. And after it, if you have understand the all criteria very well, then you can solve all the question up to 16. Okay, in the next video I will start the next topic. Up to then, thank you, have a nice day.